Dr. Anshu Dagar. I wish you all the very best for a great year ahead and always there right with you to make this year, the coming year 25-26, as beautiful as the year 24-25. All the very best to our golden girl once again, District Chairman elect Deepika Baliji and her golden team, the wonderful ladies who have joined for the last session. And I must really congratulate you and your team that all the sessions have been as brilliant as the beginning. Best Thank you. wishes and all the best. Thank you so much. Thank you so much for your encouragement and motivation, Manisha ji. Thank you. And thank you, Isha, for joining. Now we do not have any tension of muting. You are there. Thank you. Sorry for the late. No, that's okay. Absolutely fine. We understand. So, namaskar. Good afternoon. Inner wheel greetings. Isha. Friends, life is like a camera. Actually, I'm not able to see the image, Isha. Okay, thank you. Life is like a camera. Just focus on what's important. Capture the good times. And I cannot see. Again, can you read out for me, Isha? Develop from negatives. If things don't work out, just take another shot. Perfect. So I thought that with this beautiful, beautiful quote, I would like to welcome our charming district chairman, Dr. Manisha Kaushik, our vibrant and dedicated team of district executives, incoming district vice chairman Deepa Goyal, incoming district secretary Sugandha Bharti, district treasurer 25-26 Dr. Anju Ahuja, district ESO, our very own PDC Madhu Nagpal ji. She has sent her apologies as she is traveling. Our district ISO Harmeet Sehgal, and the today's showstopper, our district editor, Dr. Anshu Singh. I would like to extend a very heartfelt welcome to our very vibrant, friendly, caring, and I can go on and on, charismatic national editor Anita Jainji. It is an honor for all the club editors as well as all of us to have national editor herself guiding their roles and responsibilities. Welcome, Anita ji. Thank you so much for your lovely words. You made my day. So we all mean it. And I extend my extremely loving welcome to the enthusiastic team of club editors in this session. And yes, we are very happy, honored, and delighted to have somebody like past association president Dr. Urmil Bareja taking up the post of editorship for her club. So it is a complete honor, Urmilji, for me as well as for Anshu to have you with us. So we have somebody who guides us will be guiding along with Anshu, the district editors. Thank you so much for joining Hi, the team Deepika. of Thank you. club editors. Thank you. We are happy to have you. And also, friends, I would like to share one thing here.
आपने ये देखा अभी इतनी बड़ा ओहदा, पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, उन्होंने भी क्लब के लिए क्लब एडिटर का रोल लिया है। वो हमें क्या एग्जाम्पल देता है? वो हमें ये एग्जाम्पल देता है कि आपका क्लब is always stands first. She has taken the responsibility for her club. She has not given a single thought that I am at this stature and I will be with club editors, right? Club editors are really considered to be the, uh, although most of the past president take this post and it is a very important post, but I think she is setting a role. She's a role model for all of us that whenever there is a need in your club, you must step in. हम तो पास्ट प्रेसिडेंट होके भी सोचते हैं कि मैं ये तो अब नहीं, मैं बनूंगी ये, नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी। सच्ची बताना, ऐसा करते हैं ना क्लब में, नहीं नहीं अब मैं प्रेसिडेंट हूँ, अब मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ, नो नो, अब मैं ट्रेजरर बनूँ, नो नो, बिकॉज नाउ आई एम अ पास्ट प्रेसिडेंट. But somebody like an past association president taking up a club post is a real role model. So coming back to our session, so आज जो क्लब एडिटर्स होते हैं, आई मस्ट टेल यू, दिस रोल इज माय फेवरेट रोल. मैं जब डिस्ट्रिक्ट एडिटर थी, मैंने इस रोल को बहुत थरली एंजॉय किया था. एडिटरशिप मेरे दिल के, सच मानिए, बहुत बहुत क्लोज है, और इसका अंदाजा जो जो कोटी में थे उन सबको मिला होगा, क्योंकि आप सब पे एक बहुत बहुत प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सब कुछ बेकार है अगर आपका काम ठीक नहीं है. उस काम का क्लब प्रेसिडेंट का, क्लब सेक्रेटरी, क्लब ट्रेजरर, जो भी सब काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, अगर वो शोकेस नहीं हो रहा है, अगर वो प्रमोट नहीं हो रहा है आपकी कलम की पावर से, तो उसका मूल्य नहीं है. फिर आप ही वो है जो मूल्य से अमूल्य बनाती हैं. सो आपके पास बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ऑल्सो आई बिलीव दिस इज द बेस्ट रोल in my eyes where you can really shine with your creative ideas. और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है. With these thoughts now, I would like Dr. Anshu Singh to introduce our faculty of the day, National Editor Anita Jain ji. Thank you so much, Deepika ji, for giving me this opportunity. A very good afternoon, DC 24-25, Dr. Manisha Kaushik ji, DC 25-26, Deepika Bali ji, all district executives, National Editor Anita Jain ji, and dear club editors. I take it as an honor and privilege to introduce to you all someone who is absolutely incredible and an inspiration. Her energy, her vision, her determination, and her affection makes her so special and loved by all. She is none other than the dynamic national editor Anita Jain. Born and brought up in a very humble and supportive family in Delhi. She was the youngest among four siblings. She pursued her graduation in Bachelor of Commerce from IP College, Delhi University. In addition to this, she also did a PG diploma in computer applications. Married to Rotarian Anil Jain, a media professional who is her great support and her biggest cheerleader. Blessed with two amazing kids who are doing great in their respective careers. She is joined in Erbil District 301 as a Charter Executive Member of IWC Faridabad Central in 2007. Ever since then, she has never looked back. During her tenure as the club president in 2011-12, she was awarded as the outstanding president and inducted 14 new members, which was historical in Erbil. She received 14 awards in various categories, out of which she was awarded first in 11 categories. She firmly believes in serving the society
and to bring about positive changes with pure and good intentions. Service to others is the rent you pay for your room here on earth. And those who are happiest are those who do the most for others. This has been the driving force behind all her various fantastic projects. Be Sankalp, Silai Kendra for women and girls, various blood donation camps for which she received an appreciation award from the District Red Cross Society. Projects on environment protection, girl child health, thalassemia project, mega sports meet, Solasta. Each one did one, to name a few. Her list of projects, awards, and recognition is endless. And thus, her journey is incredibly inspiring for all of us. Every now and then, she has proved that where there is a will, there is a way. With her constant efforts, determination, and strong will to do something for the betterment of the society, she is consistently doing mind blowing projects and guiding as well as encouraging her juniors to do something remarkable. Once again, we welcome you, National Editor Anita Jain, with gratitude and affection. It would be our great pleasure to hear your valuable thoughts and guidance. Thank you so much. Thank you so much, dear District Editor-elect. My pleasure. Lovely words. ऐसे ये आप बोल रहे थे तो मुझे याद हो रहा था, अच्छा ये किया हमने. Thank you so much. I can start now. हाँ जी, please start. हाँ जी, बिल्कुल. Because we are also today very much time bound. Yes. As we have a event, everyone has to attend. A very warm good afternoon to our district chairman, dear Manisha Kaushik ji, incoming district chairman Deepika Bali ji, the district executive committee members, our district editor-elect Anshu Dagar ji, my dear club editors, and my dear Innerville friends. First of all, congratulations, dear DC-elect Deepika ji, for the Koti. Such a wonderful event, very well organized, and maja aa gaya Koti mein. Thank you. Friends, I welcome you all to today's session. First of all, I would like to thank you, Deepika Bali ji, for giving me this opportunity, and I hope आप सबको आज कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको कुछ समझा पाऊंगी. My dear club editors, स्लाइड्स देखकर घबराना मत. ये सब बहुत इजी होता है. मैंने कर लिया तो आप सब भी कर लोगे. बट बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और सब हो जाएगा. एंड ऑफ द डे लगेगा वाओ. जैसे कि दीपिका जी ने बोला कि मोस्ट क्रिएटिव पोस्ट, एंड 100% एग्री विद दीपिका जी. मतलब मैं ये वाली ऐसी पोस्ट होती है एडिटर की कि जितना अपनी क्रिएटिविटी निकालनी है इसमें निकालो. ओपन सब कुछ, सारा अपना माइंड का जितना भी ना क्रिएटिव वर्क आप इस साल निकाल के दिखाना. तो शुरू करते हैं. यस, वेलकम माय डियर एडिटर्स. इस साल आप सिर्फ क्लब के अपडेट नहीं लोगे, आप कलेक्ट करोगे मेमोरीज, आप करोगे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर, और आप अपनी क्लब की आवाज को आकार दोगे. सो कलेक्ट, इंस्पायर एंड शेप. That should be your motto for the year. Slide change, please. So now let's ask the most important question. Who is a club editor? Next, to my dear club editors, you are not just a member. You are the official writer. You are the photo collector. And you are the
reminder queen of the club. And trust me, you will have to send a lot of reminders, lot of reminders. A club editor is someone who knows what happened, when it happened, and who never forget to take a photo. क्लब एडिटर को पता होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, और कभी भी फोटोज लेना नहीं भूलती है. Am I right? आप सब म्यूट हो, मैं बोल देती हूँ यस, नहीं भूलते हैं. नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट, क्या होती है क्लब एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पहले मैंने सोचा था स्टार्ट होने से पहले सेशन कि मैं गाइड नहीं करूंगी, मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप बताओ, क्योंकि मुझे पता है जितनी भी इस साल ये क्लब एडिटर्स हैं, नॉट इस साल, हमेशा हम सबको सब पता है बेसिकली क्या होता है, बट हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में नहीं होती, इसलिए हम ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक रिमाइंडर हम लोग भी दे देते हैं, बट ये सबको पता है. तो क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नंबर 1, क्लब एडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों को इनर व्हील के बारे में बताने का, राइट. नंबर 2, एक क्लब एडिटर के पास टैलेंट एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए टू हैंडल अ पेन, प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया. आपको पेन और मीडिया दोनों चलाना आना चाहिए. नंबर 3, yes, this is very important. Club editors will only communicate with other club editors and our district editor. That is it. आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस करेंगे तो आपने डिस्ट्रिक्ट एडिटर, अंशु जी आपके डिस्ट्रिक्ट एडिटर है इनकमिंग, तो उनकी नॉलेज में होना चाहिए, उनके थ्रू आप करेंगे. अगर वो आपको गाइड करती है कि आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स कि आपने डायरेक्ट फोन उठाया और किसी को भी कर दिया. तो प्लीज टेक केयर और याद रखिए कि आप लिंक है बिटवीन योर क्लब मेंबर, अदर क्लब मेंबर्स एंड द पब्लिक. आपको ये स्पेशली मेंशन करा था दीपिका जी ने भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोटी में कि ये होता है कि हम, ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सारे सेशन हुए हैं, मुझे लगता है सब डिस्कस हुआ होगा क्योंकि हुआ है इन बिटवीन. तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, क्लब एडिटर अपने प्रेसिडेंट के साथ एंड अपने डिस्ट्रिक्ट एडिटर के साथ, दिस इज द प्रोटोकॉल, उनकी नॉलेज में होना चाहिए. एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट एडिटर को भी आप बात कर रहे हैं परफेक्ट, बट ऐसा ना हो कि आपके क्लब प्रेसिडेंट को भी नहीं पता आप क्या कर रहे हो. तो प्लीज क्लब प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडिटर. थैंक यू. एंड नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ क्लब एडिटर. नेक्स्ट, फर्स्ट चीज तो यह है कि आप आउटगोइंग एडिटर से लास्ट ईयर की सारी ब्रीफिंग ले लो, उनसे सारी फाइल्स ले लीजिए, लास्ट ईयर के न्यूज़लेटर्स और पब्लिकेशंस की कॉपी ले लो. आई नो कि अब हार्ड कॉपीज थोड़ा कम हो गई हैं, तो जो भी है उनका सॉफ्ट कॉपीज एंड ऑल, तो वो आप डिस्कस करिए. अभी सबकी लास्ट मीटिंग चली रही है, मई और जून में यही होता है कि लास्ट मीटिंग होती है, सब कॉपीज जो भी आपके हैं उनको आप ले लीजिए. इससे इससे आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए जो उन्होंने लास्ट ईयर आपके एडिटर ने किया, तो आपके लिए आप बहुत इजी हो जाएगा आपके आने वाले साल के लिए कि कैसे आपको लेटर्स भेजना है, क्या फॉर्मेट होता है, सब कुछ देखकर खुद समझ आ जाएगा. और जो रिटर्न कम्युनिकेट हमें इतनी डिफिकल्ट लग रही थी, वो इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम लास्ट ईयर का आ जाएगा. तो यू कैन सी कि यस क्या वर्किंग थी, और उसमें फिर आप अपने प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट एडिटर तो आपके साथ हैं ही जो आपको गाइड करेंगी. हम सब यहाँ होता है, पूरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको. नेक्स्ट, वी स्टार्ट विथ ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस. इंट्रोडक्टरी लेटर आप बनाएं, सेंड इफ यू वांट, नॉट नेसेसरी. बेसिकली अभी तक जो होता था, इंट्रोडक्टरी लेटर हम आईएसओस बनाती थी बिकॉज उनका जो रूल होता है फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप,
बट इससे अगर आपको लगता है, वो भी यू कैन डिस्कस विद योर डिस्ट्रिक्ट एडिटर, अगर वो बोलते हैं तो ठीक है। इससे बस ये होता है कि दूसरे क्लब्स को आपको आपके बारे में पता चलता है, दे विल गेट टू नो यू बेटर। नेक्स्ट इज फोल्डर्स। इन द कमिंग ईयर you will have a lot of projects and events, and उन सबका ट्रैक रखने के लिए इट्स बेटर दैट यू हैव सेपरेट फोल्डर्स। हर प्रोजेक्ट और इवेंट का एक छोटा सा राइटअप एंड फोटोज बनाकर रख लो, सो दैट व्हेन एनुअल रिपोर्ट्स बनाने का टाइम आए, आप सबके पास सब कुछ रेडिली अवेलेबल हो। उस टाइम होच पोच नहीं होती, अरे यार ये क्या वो क्या, इतना ये तो बहुत काम है एडिटर का। नहीं, अगर आप सब कुछ स्टार्टिंग से फोल्डर वाइज बनाएंगे तो आपका रेडी होगा, पूरा एकदम टिप्स पे होगा आपके पास। नेक्स्ट इज वर्क। Don't forget that you have to work in close contact with the president. प्रेसिडेंट और आपकी ट्यूनिंग एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। सेक्रेटरी उनका राइट हैंड, तो आप उनका लेफ्ट हैंड। आई होप ज्यादा हैवी ना हो गया हो आपके लिए, बट अगर चलो हो भी गया हो तो मैं आपको, आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑलवेज आपके साथ, एंड ऑल्सो मैं भी आपके साथ हूँ। यू कैन आस्क अस एनी टाइम। नेक्स्ट, now let's move on to proper reporting. Reporting is very important for a club editor. क्लब एडिटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम एक्चुअली रिपोर्टिंग होता है। नेक्स्ट, हाउ टू रिपोर्ट प्रॉपरली। नंबर 1, yes, always report about your work, not about events or people. काम पर फोकस होना चाहिए। नंबर 2, कोई आपने बुलेटिन बनाया हो तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है ड्यूरिंग मीटिंग। नंबर 3, एनी बुलेटिन्स और पब्लिकेशंस जो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो भी आप बताएं अपनी मीटिंग में। नेक्स्ट, नंबर 4 इज ड्यूरिंग द मीटिंग ask for the reports from others so that it can help you in your regular reporting. अगर कुछ भी ऐसा है या आपने कुछ मिस कर दिया लास्ट मीटिंग तो यू कैन आस्क। नंबर 5, और अगर आपके क्लब में बजट है और आप अपनी न्यूज़लेटर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये भी डिस्कस कीजिए कि उसका बजट क्या होगा। और क्लब का अपना बजट होता है तो उसे घबराना नहीं है, हमें बस अपने बजट में अपना काम बेस्ट करना है। आखिर आखिरकार हम सब लेडीज बेस्ट है इसमें, बजट में रहकर बेस्ट काम करना हमें आता है। नेक्स्ट, we move on to files and materials. Yes, next ईशा। आपके पास बेसिकली 3 मेल फाइल्स एंड मटेरियल होता है टू मेंटेन। फर्स्ट, correspondence. During your tenure you will receive a lot of letters and mails from other clubs and district, और आप भी काफी लेटर्स सेंड करोगी। उस सब की एक फाइल बना रखें, और जब भी आपकी मीटिंग हो तो उसमें जरूर बताना कि आपको कौन से लेटर्स एंड मेल्स आए हैं और आपने कौन से सेंड किए हैं। सेकेंड, न्यूज़लेटर, just like correspondence. Also make a file of all the newsletters sent and received from other clubs and district. Third, letterhead and directory. क्योंकि आपको लेटर्स सारे लेटरहेड पर निकालने होते हैं तो आपके पास लेटरहेड एंड एनवलप्स की सॉफ्ट कॉपी रखना होगा। सॉफ्ट कॉपी रख, क्योंकि बेसिकली अब
हार्ड कॉपी कम हो गई है, बट फिर भी हम एक हार्ड कॉपी निकलवाते हैं क्लब में, क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जिसकी हमें नीड होती ही है। तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आप अपनी आपकी प्रेसिडेंट के पास होगी, तो आप डिस्कस करके अगर आपको लगता है तो यू कैन डिस्कस विद हर योर प्रेसिडेंट एंड आप ले सकते हैं उनसे, बट सॉफ्ट कॉपी आपके पास ऑलवेज रेडी होनी चाहिए। एंड यस, आपकी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरीज, योर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, उसमें आपको सबकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यू विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स, past district chairman, other clubs. Please keep it safe with you. Next. Hmm. अब आई इंटरेस्टिंग चीज, आप सबकी तारीफ। आई नो ये सारी क्वालिटीज आप सब में है, बस ढूंढने की जरूरत है। कई बार हमें नहीं पता होता, और इनर व्हील एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है कि जहां हम लोगों ने खुद को ढूंढा है। एग्री? नेक्स्ट इज द 6 C's of a good editor. First C is clear vision. आपको विजन क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, और वो चीज कैसे कन्वे करना चाहते हो। क्या करना चाह रहे हो और कैसे करना चाहते हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड सी इज कमांड ओवर लैंग्वेज। आई नो कि हम सबको तो ऐसा फट 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 वाला तो इंग्लिश नहीं आता सबको। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ को, बहुतों को आता है, बहुतों को नॉर्मल आता है। वी ऑल आर इंडियंस। हमारी मदर लैंग्वेज इज, देखो मैं भी गड़बड़ हो गई ना तो हिंदी ही है। बट मैं सच्ची बताऊं, दिस इज जस्ट अ वे टू इम्प्रूव इट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये सब करना आ जाएगा, बट अगर आप देखो तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थोड़ा वोकैबलरी और ग्रामर का यूज बेटर करेंगे बस। अब क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, और हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रूफ रीडिंग भी हमें करनी हो सकता है, नहीं तो करनी ही होती है। तो इसलिए वी शुड हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज। बाकी फॉर एनी डिफिकल्टीज वी ऑल आर हेयर टू हेल्प। Also, I will say to you all the club editors that you all should help each other. एक दूसरे को देखो, उनसे सीखो, उन्हें बताओ, उनसे सीखो। सो मच लर्निंग इन इनर वे, ऑनेस्टली ये हम सबको पता है। हम सब 50+, मोस्टली 50+ लेडीज है, और हमने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। तो इसलिए कोई उम्र नहीं होती सीखने की। नेक्स्ट, थर्ड सी इज क्रिएटिव माइंड। ये तो आप सबके पास ही है। आई नो कि आप सब ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव हो, बस अब थोड़ा आपको सोचना है कि कैसे इनोवेटिव आइडिया से आपकी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो उसमें आपको बस अपना क्रिएटिविटी आपको लानी है, सोचना है। अब आपको 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी है आपके पास 1.5 month। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ सी इज कामनेस। बी कूल एंड काम। ये तो एक्चुअली हम सबकी लाइफ का ही मंत्र होना चाहिए, नॉट ओनली एडिटर्स। तो यहाँ ऑब्वियसली लगेगा ही कि ये होना है। एंड बी कूल एंड काम एंड फोकस ऑन योर वर्क। नेक्स्ट, फिफ्थ सी इज केयरफुल। यू ऑल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि पब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स आप ही की है। तो इसलिए आपका क्या पब्लिश करते हो उसमें आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आपको क्या पिक्चर्स डालनी है, क्या राइटअप लिखना है, प्लीज आप जब लिखें अपने प्रेसिडेंट के साथ शेयर करें, डिस्कस करें। कई बार हम नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम ओवरलुक कर जाते हैं और नहीं समझ आता। हम लोग भी करते हैं। ये मत सोचिए कि आप क्लब एडिटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिटर भी करती है, नेशनल एडिटर भी करती है।
इंटरनेशनल एडिटर जो भी हम काम करते हैं हर लेवल पे हम क्रॉस चेक करते हैं। तो इसमें कोई आपको इसको शाई होने की जरूरत नहीं है कि क्या हमने लिखा उनको दिखाएंगे, नहीं, प्लीज बी केयरफुल। इससे पहले कि आप फेसबुक और इंस्टा पे पब्लिक को दिखाएं, बेटर है अपने प्रेसिडेंट को दिखाएं। 6 C's कंप्यूटर सेवी। आज के टाइम में तो आप सब ही जानते ही हो, वी ऑल हैव टू बी कंप्यूटर सेवी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मेल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चलाना आना चाहिए, वो आपको आता ही है। और अगर एडवांस नॉलेज है ऑफ कंप्यूटर्स तो बस बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल मीडिया। नेक्स्ट, आजकल वर्ड तो चेंज हो ही चुका है। Social media has become a very important tool for us all to spread knowledge and information. Facebook, Instagram, Gmail, and YouTube. These four are very important for you. Number one, you can create page for your club on Facebook and Instagram. Number two, you can also start your club YouTube channel. You can showcase your club activities, projects, events, etc. इनरव्यू ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, बट अब मैंने यहाँ बोला है यूट्यूब चैनल, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कि नई नेशनल एडिटर ने बोला था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी, बजट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्लब में, क्योंकि हमारे पास इतने ड्यूज नहीं होते कि हम ये चीजें कर पाए। बट हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं। इफ योर प्रेसिडेंट इज रेडी तो गो अहेड। पब्लिकेशन के साथ साथ इनरव्यू ब्रांडिंग भी क्लब की एडिटर की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियोस बनाओ छोटी छोटी, सबके साथ शेयर करो फेसबुक पे। इनरव्यू आप ये मत सोचो, मैंने ऐसा कुछ थॉट आया था कि कुछ क्लब मेंबर्स को ये आता है कि शो ऑफ क्यों करना काम को। देखो, हम खुद को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, जब हम पिक्चर्स डालेंगे बैनर होना चाहिए, आपके क्लब मेंबर्स होने चाहिए। हम शो ऑफ अपने आप को नहीं कर रहे हैं, हमें अपने आप को शो ऑफ करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, बट इनर व्हील का जब हम काम कर रहे हैं तो वो हम इनर व्हील को प्रमोट कर रहे हैं। एज यूजल, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, 100 ईयर क्रॉस कर चुके हैं नाउ, 101 ईयर चल रहा है, 102 साल स्टार्ट होने वाला है। बट आज भी आप लोग सबको पता होगा कि अगर आप किसी को बोलते हो इनर व्हील, तो क्या सबको एकदम समझ आ जाता है? नहीं आता। हमें तो अभी भी बोलना पड़ता है, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमें आज भी बोलना पड़ता है, रोटरी। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर लेडीज, पहले ये होता था। तो ये इसलिए हम लोगों को सोशल मीडिया पे इनर व्हील को प्रमोट करना होता है, हम अपने को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। और क्यों ना करें, अगर हम काम भी कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने आप को मोटिवेट करें। अगर आज हमारी गैलरी में आज हम कोई प्रोजेक्ट कर कर आते हैं, सब पिक्चर शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो भी आपका क्लब का ग्रुप है, वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद वो पिक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बट जब आप उसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके पोते पोती नाती नातन सब देखेंगे हमारी दादी नानी ने कितना काम करा। तो इसलिए एंड इनर व्हील के लिए प्लीज छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी। हाँ, बट एक चीज और है, जैसे अभी मैं फेस कर रही हूँ एज ए नेशनल एडिटर, कि हर प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट एडिटर पोस्ट करें, हर प्रोजेक्ट को चाहता है नेशनल एडिटर। देखो, वो पॉसिबल नहीं होता। एक गाइडलाइन आएगी जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडिटर अंशु जी आपको शेयर करेंगी। आप अपने क्लब का पेज बनाते हैं, वहां आप 100 रुपए का प्रोजेक्ट भी करे डालें, अपने फेसबुक पे डालें। बट हम जब डिस्ट्रिक्ट एडिटर को भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिटर जब नेशनल एडिटर को भेजती है, तो हमें देखना होगा बेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। तो प्लीज इसका ध्यान रखें और अपने बेस्ट प्रोजेक्ट हमेशा बिल्कुल साइड बाय साइड भेजते रहें या सेव रखें कि हम ये गया है, इसके बाद नेक्स्ट भेजेंगे, क्योंकि वो सिस्टम सारा आपको आएगा भी थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडिटर।
क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे हमने हिस्सा ले रहा है वो अभी आपको नेक्स्ट बताएंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर बताएंगे। तो इसलिए अपना सोशल मीडिया, मेरी तो लाइन ही है इस टाइम, तो मुझे तो सोशल मीडिया पे ही बोलना है। तो हर काम आपका दिखना चाहिए, पिक्चर्स, छोटी छोटी वीडियोस, क्योंकि बड़े वीडियोस को डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ 10-10, 15-15 सेकंड की क्लिपिंग्स बनाओ और डाल दो, ठीक है, सो दैट पीपल, लोग, पब्लिक जाने इनर व्हील को, कि इनर व्हील, जब हम फेसबुक खोले कोई तो इनर व्हील, इनर व्हील, इनर व्हील लिखे, ठीक है। नेक्स्ट, yes, this is very important. What are the do's and don'ts of social media? Again, on Facebook, action photos with banner ही post करना। सेकेंड, सिर्फ मजे के लिए फोटोज नहीं डालनी, ट्राई करो कि हर फोटो के पीछे कोई मीनिंग हो। मैं कुछ मेंशन ज्यादा नहीं करूंगी, बट ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं नरवील की, और हम इंजॉय कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, पूल पे हैं, ऐसा हुआ है, मैं इसलिए सिर्फ मेंशन कर रही हूँ कि हम पूल साइड हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज वो इनरवी वो आप पोस्ट नहीं करेंगे, प्लीज बी केयरफुल। आप अपने प्रोजेक्ट डालें, ठीक है, फेलोशिप कर रहे हैं, आप अपने क्लब में मीटिंग्स कर रहे हैं, आप तीज करते हैं, होली करते हैं, दिवाली करते हैं, कुछ भी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने क्लब मेंबर का, अपने प्रेसिडेंट का, डालिए। बट जब हम डिस्कशन पे जाते हैं, वो प्लीज, वो मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कभी इनर व्हील बैनर के साथ मत लगाइए कि हम स्विमिंग कर कॉस्ट्यूम में हैं या कुछ है। वो एक दो बार हुआ है, तो प्लीज नोट। एंड यस, डू नॉट टैग रैंडम पीपल, do not report to the association office, please follow the letter, you have to report to the president and district editor, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। एंड टैग भी कोटी में दीपिका जी ने भी मेंशन करा था कि आप किसको टैग कर रहे हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडिटर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को टैग नहीं कर रहे हैं, बट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, एसोसिएशन सेक्रेटरी, लाइक प्लीज लेटर फॉलो कीजिए। आप क्लब मेंबर हैं, आप क्लब मेंबर्स को टैग कीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को टैग कीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को टैग कीजिए। On social media, always show quality work, because inner will be known by your work. So always keep that in mind. Next, I hope आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं कर रही हूँ। चलो, now let's move on to club newsletter. Next, first thing, आपको अपने न्यूज़लेटर से फ्रेंडशिप एंड सर्विस प्रमोट करने हैं। एंड यस, अगर आपके क्लब न्यूज़लेटर का कोई नाम नहीं है, तो अपने क्लब न्यूज़लेटर का एक अच्छा सा नाम डिस्कस करिए अपनी प्रेसिडेंट के साथ, अपने आप डिसाइड मत करिए, अच्छा लगता है उनके साथ डिस्कस कीजिए और अपने क्लब न्यूज़लेटर का नाम रखिए। एंड इफ ऑलरेडी हैज अ नेम, देन रिटेन इट, बिकॉज देन द क्लब न्यूज़लेटर ऑलरेडी हैज एन आइडेंटिटी। तो वो जरूरत नहीं होती हम हर साल न्यूज़लेटर चेंज करें। यू नो ऑल की ऑर्बिट कब से चल रहा है, एंड आज के डेट में ऑर्बिट पहचान है डिस्ट्रिक्ट 301 की। तो आपके क्लब के न्यूज़लेटर की भी एक पहचान होती है। हर साल एडिटर ऐसा ना करे कि मैं ये नाम रखूंगी। ऑल्सो, जो आपका बुलेटिन हो, ट्राई करो, ट्राई टू गो फॉर ई बुलेटिन। अब सब फोन एंड लैपटॉप पर पढ़ लेते हैं, तो प्रिंट only a few copies if required, बाकी save paper. Now the important thing is what to put in your club newsletter. Please note this down. वैसे तो I will share the PPT with you all also. I'll share with the district chairman and district editor. वो district editor को share कर देंगे. And first, club president's message, club editor's message, district chairman, district editor's message. आप डीसी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट एडिटर से उनका मैसेज मांग सकते हैं।
club events, projects, inner wheel information, club, district, association update you can mention, अचीवमेंट ऑफ इनर व्हील मेंबर्स, कोई अचीवमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट में या कुछ भी, तो आप अपने न्यूज़लेटर में डाल सकते हैं सो दैट आपके क्लब मेंबर्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप ब्रांडिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, उसके लिए आप अपना क्रिएटिव माइंड यूज करें। और देख, अब हम वेट करेंगे आपके न्यूज़लेटर की इनकमिंग ईयर में। नेक्स्ट, चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाउ टू रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, जब भी आपको डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्टिंग करनी हो तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट इज इन रिटेन टू पिक्चर कंटेंट। प्लीज सेंड एक्शन फोटोज। टेक केयर दैट द फोटोज के साथ बैनर होना चाहिए, उसमें क्लब मेंबर्स होने चाहिए। सेंड हाई रेजोल्यूशन फोटोज इन जेपीजी फॉर्मेट। ऑलवेज सेंड पिक्चर्स एज सेपरेट अटैचमेंट। ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि एडिटर्स पीडीएफ बनाकर सेंड कर देते हैं, उस फोटोज की रेजोल्यूशन कम हो जाती है। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि फोटोज स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब आप पे डालते हो फेसबुक पे या आपके डिस्ट्रिक्ट एडिटर या जब नेशनल हो जाएगा तो वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट एंड पिक्चर बहुत। प्लीज ध्यान रखें कि आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना। सेकेंड इज इन रिलेशन टू टेक्स्ट कंटेंट। अपनी सारी रिपोर्ट ब्रीफ और इंफॉर्मेटिव रखना। ऑलवेज इंक्लूड who, when, where and how। ये 4 क्वेश्चंस याद रखना। who, when, where and how। In your text only include club names and district number। Next, yes, oof, खत्म। That was all from my side, friends। I hope I helped you। I also hope कि मैंने आपको बहुत ज्यादा बोर या परेशान ना किया हो। Thank you, friends, for patience hearing। But again, friends, I would say कि कुछ भी हो, we are just a call away। Wish you all the best of luck। अच्छे से काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करो, अपनी टीम के साथ काम करो, अपने प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। Long live Innerville। Thank you so much। Have a great day। थैंक यू सो वेरी मच अनीता जी। आपका पीपीटी, एक तो आपका पीपीटी बहुत सुंदर था। Thank It you। was a very beautiful made PPT, eye catching, and thank you for in such short time giving the whole information to all the club editors। I आपने wish that was सारे important points को बहुत अच्छे से टच किया और बहुत अच्छे से explain करा। Thank you so much, Anita ji। my pleasure। Now moving ahead, I would request our district editor elect, Anshu Singh, Dr. Anshu Singh, to Thank you so much, Deepika ji, for giving thank me you. Now I invite you to the share opportunity. your vision and your road ahead। आप कुछ रूबरू करें अपनी टीम के साथ। Thank you so much, Deepika ji। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हमारी नेशनल एडिटर अनीता जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, सभी एडिटर्स को ऑलमोस्ट सारे बिल्कुल, ही पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन मैंने भी सच में, एक रोड मैप बनाया है, तो प्लीज बिल्कुल पेशेंस शेयर बिल्कुल, आप करें। जरूर शेयर करें। अध्ययन, जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट हमें टाइटल दिया हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका वाली जी ने।
Let's get in touch. हमारी डायनामिक DC 25-26 दीपिका बाली जी, and I, as a district editor, Dr. Anshu Singh Dagur. Voice behind the vision. An editor turns raw thoughts into meaning, giving clarity to ideas and power to expression. And according to me, this is the full form, I think so. E for excellent, D for digital savvy, I for initiator and innovator, T for team interpersonal skill, and O for organized, and R for responsible. जैसा कि आप सभी ने अभी पीपीटी जो अनीता जी ने हमें दिखाई थी, उसमें उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट एडिटर हमारे ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने क्लब के प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से जो है हम शोकेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमें एक तो अपनी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, लेकिन हमें अपने भाव को प्रदर्शित करना आना चाहिए। नेक्स्ट, डिजिटल सेवी आई थिंक सभी हैं आज की डेट में। आर फॉर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल हमारे क्लब से जो भी डेटा हमारा जा रहा है उसमें हम रेस्पॉन्सिबल है। एज अ डिस्ट्रिक्ट एडिटर मेरे पास जो भी डेटा आएगा वही डेटा जो है मैं न्यूज़लेटर में पब्लिश करूंगी। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडिटर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले पूरी टीम के साथ बैठ के, क्योंकि दिस इज अ टीम वर्क, तो पूरी टीम के जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं आपके क्लब के सभी के साथ बैठ के एक बार उसको डिस्कस करें और फिर उसके बाद ही डेटा मुझे फॉरवर्ड करें। A sense of an editor. पैरालीगल कम्युनिकेशन स्किल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपनी जो लैंग्वेज स्किल है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, लेकिन हमें उस पर कमांड होना चाहिए और हमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करना चाहिए। टैक्स सीवी हमें बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में विदाउट टैक्स सीवी हमारा वर्क आई थिंक नहीं चल सकता, क्योंकि एज अ एडिटर तो ये बेसिक टूल है कि हमें जो है टैक्स सीवी होना ही चाहिए। अगर आपको किसी भी कहीं भी कोई इशू आता है तो उसके लिए जो है, जैसा कि हमारी अनीता जी ने भी डिस्क्राइब किया और डीसी ने भी हमें बताया है कि आप किसी भी टाइम कॉल करके आप जो है उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटर एंड ओरिजिनेटर। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में डायनामिक डीसी दीपिका जी ने कहा था कि हमें बहुत ही क्रिएटिव होना है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट हम फ्लोट कर रहे हैं तो उसमें हमारी ओरिजिनलिटी भी दिखाई देनी चाहिए और हमारी क्रिएटिविटी भी शो होनी चाहिए कि हम उस प्रोजेक्ट को कितनी क्रिएटिविटी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। टीम वर्क एंड पार्टनरशिप स्किल, यस, टीम वर्क इज मोर असेंशियल। जैसा कि कोटी में बताया था हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने कि विदाउट टीम वर्क, इतनी अच्छी उन्होंने वीडियोस दिखाई थी वहां पर, आप सभी ने देखी होंगी कि टीम वर्क के बिना कोई भी हम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो कुछ भी हमें फ्रूटफुल दिखाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को, टीम वर्क इज मोर असेंशियल। प्लानिंग, यस, प्लानिंग इज अ बेसिक टूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि हमें प्लानिंग के बिना, अगर मान लीजिए हमने प्लान नहीं किया, हमारा नेक्स्ट कोई इवेंट आने वाला है तो हम उसको अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो हमें अपने आप को प्लान करना है कि हमारा कल इवेंट है और कल इवेंट जो है वो किस चीज का इवेंट है, उसके लिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है और उससे रिलेटेड हमें एज अ एडिटर हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम उस जब इवेंट को अटेंड करके आए तो हम उनको लिख करके दे सकें। नेक्स्ट, सिस्टमाइजेशन, यस, यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेटा। जो भी डेटा आपका फ्लोट हो रहा है आपके क्लब से, उसके लिए आप ही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी इज मस्ट। अगर आप रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा आया वो मैंने न्यूज लेटर में फॉरवर्ड कर दिया और मेरे न्यूज लेटर के बाद में जो है नेक्स्ट वो नेशनल एडिटर के पास जाएगा। तो कोई भी आप डेटा भेज रहे हैं तो उसको पहले वेरीफाई करें अपने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, सेक्रेटरीज के साथ मिलकर, कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए। The editor will envision a brief description of your club projects under 3 words, 300 words. कोई भी डेटा जो है वो मोर देन 300 वर्ड्स नहीं होना चाहिए और आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को
वो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन 300 वर्ड्स, वेरी क्रिस्प होना चाहिए। 3 हाई रेजोल्यूशन एक्शन फोटोज नीड्स टू बी अटैच्ड, और 3 जो हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज हमें भेजिएगा प्लीज, क्योंकि उससे क्या होगा। सेकेंडली एक्शन फोटोज होनी चाहिए, जैसा कि अभी अनीता जी ने भी डिस्क्राइब किया था कि बहुत से क्लब्स क्या करते हैं कि अपनी पोज करते हुए 2 मेंबर्स चले गए, उन्होंने अपनी पोज करते हुए फोटोज भेज दी, नहीं, वो हमें आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो बेटर भी कि आप हमेशा एक्शन फोटोज भेजिएगा, जिसमें कि हमें आपके जो क्लब मेंबर्स हैं वो जो है प्रोजेक्ट को करते हुए दिखाई दे। और 3 भेजिएगा, और तीनों ही हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोलाज वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि कोलाज में जो है ना वो क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाती है, और उसको जो है न्यूज़लेटर में वो प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता है। ऑल डिटेल्स मस्ट रीच मी बिफोर 25th ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका वाली जी ने हमें जो न्यूज़लेटर के लिए डेट मेंशन की है वो 10th ऑफ एवरी मंथ दी है। तो वो केवल 25th और जो है लास्ट प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए 25th ऑफ एवरी मंथ दी है। तो हमारी लास्ट डेट जो है वो 25th ऑफ एवरी मंथ है। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हर मंथ के 25th तक आप मुझे अपनी प्रोजेक्ट्स भेज दें, ताकि मैं भी उसको जो है न्यूज़लेटर में नेक्स्ट मंथ जो है निकाल पाऊँ। थैंक यू सो मच। आई होप सबके समझ में आया होगा जो मैंने रोड मैप बनाया है। और अंत में मेरी एक ही गुजारिश है आप सभी से कि प्रभु की इच्छा से हमें ये वर्ष मिला है इस कार्य को करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डायनामिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दीपिका बाली जी की गाइडेंस में हम अपनी पूरी निष्ठा और पंक्चुअलिटी के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much, District Editor-elect Dr. Anshu Singh. आपने बहुत ही कम समय में सारी बातें अपने एडिटर्स के साथ करी। I am sorry and my apologies for my baby. Brownie, no voice, please. I'm really sorry. अब मैं भी टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहती हूँ क्लब एडिटर्स के साथ। एक चीज में जो हमारे क्लब एडिटर्स को देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे सीनियर मेंबर्स भी हैं जो रिपीट भी कर रहे हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब नए क्लब्स भी हैं। सो क्लब एडिटर, आप जो है अपने क्लब प्रेसिडेंट का एक वो एसेट हैं जो क्लब के प्रोजेक्ट्स को शोकेस करेगा। सो मैं आपसे कहूंगी कि आप लोगों को क्लब प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट। आप क्लब प्रोजेक्ट में जाएं, प्रोजेक्ट की एक अच्छी सी फोटो खुद खींचें, और फिर उसको उसको आप जब आगे भेजेंगी ना, और जब वो आप देखेंगी, जब पहली बार आपकी फोटो आती है ना प्रोजेक्ट की ऑर्बिट में, बड़ी खुशी होती है एज क्लब एडिटर। और ना फिर लगता भी है कि अरे मैंने कितनी अच्छी फोटो बनाई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर फोटो बोलती है। एवरी पिक्चर स्पीक्स इट्स स्टोरी। आपकी पिक्चर कैसे खींची गई है वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अच्छी पिक्चर आप अगर जो भी एडिटर्स, क्लब एडिटर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फेसबुक पे नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एडिटर जैसे कि बहुत अनीता जी वेरी वेरी रेगुलरली एवरी डे शी पुट्स, आई डोंट थिंक मोर देन, आई मीन लेस देन 3 पोस्ट इन अ डे। इनकी डेली पोस्ट आती है, उसमें आप, मैं खुद हैरान हूं कि और डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कितनी अच्छी पिक्चर खींचते हैं। I will share few pictures with you. I will share with Anshu and she will share it with you. पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट खाली आप तक नहीं रुकना है। आपका जो न्यूज लेटर है डिस्ट्रिक्ट एडिटर, वो नेशनल एडिटर को भी भेजेंगी, एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स को भी भेजेंगी, उसके माध्यम से वो और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएगा। थर्ड, तो उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लब का प्रोजेक्ट फिर उसी में से नेशनल एडिटर भी पिक करेगी। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट करा, बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है, बहुत नोबल प्रोजेक्ट है, दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट है,
लेकिन उसकी पिक्चर अच्छी नहीं है, तो नेशनल एडिटर खाली अपने सोशल मीडिया पेज पर, हैंडल पर और वेबसाइट पे खाली लिख तो सकती नहीं है ना कि 301 ने दिल छूने वाला प्रोजेक्ट करा। उनको पिक्चर दिखानी है, अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो वो दिखा नहीं पाएगी, वो सीधा अंशु को भेज देंगी कि आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस। अनीता जी मेरे से आ, शायद बिल्कुल सहमति प्रदान करेंगे इस बात पे कि अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो कैसे डालेंगे, और अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो डिस्ट्रिक्ट एडिटर भी कैसे डालेंगे। ये तो रही पिक्चर की बात। दूसरी चीज कि किसी ने चैट में लिखा था कि हमें कुछ गिव अस फ्यू आइडियाज अबाउट ब्रांडिंग। आपका ब्रांडिंग का टूल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोशल मीडिया पे आपके क्लब को हैंडल करना, आपके क्लब का हैंडल, उसकी उसका सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो बुलेटिन है, जो आप न्यूज लेटर निकालेंगे, वो भी एक ब्रांडिंग का सोर्स है। नाउ अब उस बुलेटिन में आप मान लीजिए आप ही के सोसाइटी में, आपके आसपास एज क्लब एडिटर कोई एमिनेंट पर्सनालिटी रहती है, आप उस एमिनेंट पर्सनालिटी के पास जा सकते हैं। कोई वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो आप उनका एक छोटा सा इंटरव्यू, उनसे कोई टिप्स ले सकते हैं और अपने बुलेटिन में ऐड कर सकते हैं उनकी एक अच्छी पिक्चर के साथ। फिर वही बुलेटिन आप उनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को उन तक पहुंचाया, वो आगे जो है एक हार्ड कॉपी देकर आइए जरूर उनको। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर हैं, आपने हार्ड कॉपी दी, वो भी जरूर रखेंगी, क्योंकि अगर वो फीचर हुई हैं तो स्वाभाविक है कि हम वो साइड में मैगजीन्स हैं, पेशेंट्स बैठे हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, टाइम पास करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप इनर व्हील के आप किसी से मिलने जाएं तो आप कुछ भी गिफ्ट करें, उस पर थोड़ा सा ब्रांडिंग होना चाहिए इनर व्हील का। एज क्लब एडिटर आप किसी से मिलती हैं, सबसे आसान तरीका तो और सबसे तो अच्छी चीज तो ये है, आप किसी को भी ये दे सकती हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हर किसी को चाहिए, चाहे हम कितने भी टेक सेवी हो जाएं, बट हम पेन के बिना नहीं रह सकते। सो देयर आर मेनी मेनी अदर थिंग्स जो आप कर सकती हैं अपने क्लब प्रेसिडेंट के साथ मिलके। क्लब में एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, ठीक है। अपने मेंबर्स को एंगेज रखिए अपने न्यूज़लेटर में, उनसे उनके उनके विचार भी मांगिए, उनसे रेसिपीज भी मांगिए, और उनसे कोई अगर आपके क्लब में कोई पोएट है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, जो भी अचीवर्स हैं, उनको हाईलाइट करिए। सो ऑल दीज थिंग्स विल मेक योर न्यूज लेटर एंगेजिंग, जहां पे आपके क्लब मेंबर्स भी जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ डालेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इससे आप ना तो अपने क्लब मेंबर्स को एक मौका दे रही हैं, उनकी अचीवमेंट को शोकेस कर रही हैं, फिर वही आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो करेंगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट जब हम करते हैं वो सर्कुलेट होता है। सो आपकी क्लब की अचीवमेंट जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होंगी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू पुट दैट आर्टिकल, you put that achievement in your newsletter. So newsletter और सोशल मीडिया, ये दो चीजें तो आपने ये दो चीजों को याद रखना। और अगर आपको नहीं आता है सोशल मीडिया को हैंडल करना, यू नीड नॉट वरी, यू हैव टू इन्फॉर्म योर डिस्ट्रिक्ट एडिटर एंड we'll help you to do that and also maintain that whole year, ठीक है। और अनीता जी और अंशु ने सब चीजें बहुत अच्छे से कवर करी है, एंड आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर एक एडिटर है, ये मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर एक एडिटर है, संगीता सिंह जी यहाँ बैठी हुई हैं। आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द एडिटर विद मी, तो वो मुझे जानती हैं कि मैं कितनी पैशनेट हूँ पिक्चर्स को लेके, सोशल मीडिया को लेके, अपनी ब्रांडिंग को लेके। तो मेरे अंदर एक एडिटर छुपा हुआ है, तो आपके पास दो, एक एडिटर तो है ही डिस्ट्रिक्ट एडिटर, और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के अंदर जो एक एडिटर छुपा हुआ है वो भी आपके पास आने वाला है। सो इसीलिए आप वो सोर्स हैं
जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आप ब्रांडिंग का वो सोर्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस साल नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है. यू कैन बी दैट person who will take our organization to next level. So आप इतने important हैं, not for the club, but for the district, but for the organization. So I hope आप ये सारी बातें याद रखेंगे और सोशल मीडिया पे अपने प्रोजेक्ट्स को, अनीता जी ने बहुत अच्छे से आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, वो सेम है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, इसीलिए अंशु जी ने भी रिपीट नहीं करा. वो आपको ध्यान में रखना है. And Anshu is always there. I am always there to help you in every manner. Thank you so much. अगर कोई क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम का हमारे साथ आज थोड़ा सा मैं टाइम कंस्ट्रेंट है. वी विल टेक ओनली 3 क्वेश्चंस और इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट इन द ग्रुप. वहां पे अंशु और मैं, अंशु आपको रिप्लाई देंगी एंड इफ इट नीड्स माय input, I am also there, so I will give my input freely. तो हम 3 क्वेश्चन जरूर ले सकते हैं. तो मैं ईशा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्पॉटलाइट करें जो भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं. मुझे रेनू जी आपने हाथ खड़ा करा था. रेनू ग्रोवर जी, आपके पास कोई क्वेश्चन भी है, पूछिए. हाँ जी रेनू जी. शीतल जी स्पॉटलाइटेड है अभी, शीतल अच्छा मलिक. चलिए ठीक है, इसके बाद रेनू जी को कर देते हैं. हाँ जी शीतल जी. हाय Good af- शीतल. Hello, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Ma'am, Good to see you. there's a good. I'm good. There's a question. Anita ji has addressed that we have to put our pictures with a banner. So only physical banner has to be there behind us, or somewhere physical banner is not present. So can we put the e banner on that? Good Will it question. work? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज दिस आई हैड एड्रेस्ड इन प्रेसिडेंट्स. देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आई डू नॉट लाइक ई बैनर्स. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्करेज ई बैनर्स. ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप इतना बड़ा बैनर लेके जाएं, पहले जैसे हम करते हैं आइडियली, पीछे 2 जने पकड़ते हैं फिर हम आगे खड़े होते हैं, है ना. अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप जहां प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप इतना बैनर बनाएं, यू नो, एक हैंडबैग के साइज का, वो रोल भी हो सकता है. ठीक है, उसको अपने बैग में रखें. 4-5 बना लें. एडिटर के पास तो हमेशा होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास हमेशा होना चाहिए. सो आप कहीं भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ओपन इट एंड शो इट. Okay. बट एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल बैनर इज वेरी वेरी वैल्यूएबल आई वुड से. क्योंकि ई बैनर देखिए, ऑफ कोर्स हम आर्टिफिशियल उसका वो यूज कर रहे हैं, बट फिर उसमें प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियलिटी आ जाती है. दिस इज माय ओपिनियन. सो आई वुड लव टू हैव प्रोजेक्ट्स विद बैनर. मैं आपको ये कह रही हूँ, आप बैनर छोटा बना लीजिए. Okay. We can use ठीक है, standees also, हाँ, बट or small banners. हैविंग सेड दैट, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. कभी कभी ऐसा है आप भूल ही गए हैं, मान लीजिए बैनर ले जाना किसी वजह से, या वहां पे आप बैनर नहीं यूज कर पाए हैं, कोई ऐसी जगह है, कोई टॉक चल रहा है, कोई अवेयरनेस वो चल रहा है, आप किसी के साथ आपने मान लीजिए कोलैबोरेट करा है, तो कई बार नहीं भी यूज हो पाता. उस केस में आप ई बैनर लगाएं. बट physical banner is a must. It is Perfect. only an alternative used for specific reasons. Next Sure. question, please. Thank you so much. Thank you, Shital. Thank you, ma'am. Thank you. हाँ जी रेणु जी. हेलो हेलो जी. हेलो गुड आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून मनीषा जी, दीपिका जी, Good afternoon जी. Good Anshu afternoon. ji and Anita ji and friends. I just wanted to ask that club editor has to get the message of the DC and the national editor or the district editor. Does she have to send a mail or the president sends the mail? Okay. Earlier it was the president has to send the mail and get it. Okay. Another good question, I must say. एक पहली चीज के डिस्ट्रिक्ट एडिटर आपको इन्फॉर्म कर देंगी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैसेज. ठीक है. Okay. Okay. हर बुलेटिन में what I have observed,
the hierarchy is not Built into- proper. जो लैडर सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए वो नहीं हो Yeah. पाता है. So for me it is very important, so we'll be very careful. आपका क्लब न्यूज़लेटर में सबसे Yeah. पहला मैसेज क्लब प्रेसिडेंट का डलेगा. आप ठीक है जी. क्लब का न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं, क्लब का लीडर क्लब प्रेसिडेंट है. ठीक है अब जी. चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मैसेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडिटर का मैसेज भी है, लेकिन पहला मैसेज क्लब प्रेसिडेंट का होगा. ऐसे ही जब डिस्ट्रिक्ट एडिटर निकालता है, उसमें चाहे उन्होंने एसोसिएशन इंटरनेशनल का मैसेज हो, बट डिस्ट्रिक्ट की हेड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, तो पहला मैसेज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का होता है. ठीक है. अब द प्रैक्टिस इज इट इज एक्चुअली, आई मीन इट हार्डली मैटर्स कि क्लब प्रेसिडेंट भेज रहा है या क्लब एडिटर्स भेज रहा है. आजकल प्रैक्टिस ये है कि क्लब एडिटर ही मेल कर देता है मैसेज के लिए. बट हैविंग सेड दैट, क्लब एडिटर तभी ही भेज सकता है जब उसको क्लब प्रेसिडेंट से कंसेंट मिला हो. आपको क्लब प्रेसिडेंट से बात करनी है और आपका क्लब प्रेसिडेंट अगर कहते हैं, इट इज क्लब टू क्लब. प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं, आई विल आस्क फॉर द मैसेज, it is absolutely fine. If she says, okay, go ahead and ask for the message, you can go ahead and ask for the message. ठीक है रेणु जी? Yeah. Okay. Thank you जी. And Next question. about the previous years, I've seen association president all के भी, are they also to be printed? Association president's message and all that. In the few years I've seen that ठीक है, See, जो एक प्रीति club गुरनानी जी newsletter में from ना, our district. unless and until it is a milestone newsletter. देखिए, आपके क्लब में कोई स्पेशल इवेंट है जिसका आप वो न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं, आप कोई माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप एसोसिएशन डिग्नेटरीज का मैसेज डालते हैं. Okay. इट इज वेरी गुड. बट अगर आपका रेगुलर क्लब न्यूज़लेटर डल रहा है तो उसमें जरूरत नहीं है. Having said that, we will provide you a message. एसोसिएशन प्रेसिडेंट का एक कॉमन Yeah. मैसेज है, जो आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं. Okay. बट आपके रेगुलर क्लब That will be provided to us by the district editor. इज इनफ. ठीक. और जब आपका कोई माइलस्टोन या स्पेशल न्यूज़लेटर है, उसमें आप एसोसिएशन से, ऑफ कोर्स you cannot go directly. Of course, I don't have to tell you, a senior member like you, Yeah. but Yeah. club editors cannot go directly, right? Yeah. District editor ही वो आपको मैसेज प्रोवाइड कराएंगी, Fine. क्योंकि उनको भी आगे कंसेंट मिलता है. कभी कभी वो कहते हैं नो इट्स ओके, यू गो अहेड, यू नो. सो दैट इंटेंशंस वो हमारे एपी और एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स जैसे हमें कन्वे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडिटर विल कन्वे इट टू यू. ठीक है जी. Fine. Thank you very much, Deepika ji. थैंक यू जी. वेलकम. Thank you. Thank you. नेक्स्ट. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good everyone. afternoon, Radhika. Ma'am. I'm so happy to see a new club joining the session so sincerely. Very good. Anji, bolo ji. Thank you so much, ma'am. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है राधिका. So I want to ask three rules and just a gist of the project. Okay, now can you hear me? अब हाँ, तो मैं कह रही थी कि न्यूज लेटर्स आर एक्चुअली द, you can hear me, right? Can you hear me? Yeah, now I can, yeah. Okay, so newsletters are actually the project details with 3 pictures sent to the district editor, right? And मुझे आप बता सकते हैं कि what exactly are bulletins? Bulletin is another word for newsletter. Okay. Okay. Newsletter is a compilation of our work we do, and हम क्या क्या करते हैं, हम फेलोशिप और सर्विस करते हैं. ठीक है. सो उस न्यूज़लेटर में हम न्यूज़लेटर को स्टार्ट करते हैं एक मैसेज से, ठीक है, जिसमें हम क्लब प्रेसिडेंट से मैसेज लेते हैं, राइट. एंड उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट से मैसेज लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडिटर से, क्योंकि वो आपकी टीम लीडर हैं, राइट, एंड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से. ये 3 मैसेजेस होते हैं एक न्यूज़लेटर में. एंड उसके बाद आप उसके अंदर आपके क्लब की एक्टिविटीज को हाईलाइट करते हैं
जो आप करते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, आप सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो आप डालते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट एडिटर को 3 पिक्चर्स चाहिए, बट आप अपने क्लब के न्यूज़लेटर में 1 पिक्चर भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं एक प्रोजेक्ट की। ठीक है, ठीक है। और उन प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आपने अगर मंथली न्यूज़लेटर है तो आपने उस मंथ में और क्या क्या करा, एक्टिविटीज क्या करी, जनरल बॉडी मीटिंग में क्या करा आपने, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इवेंट अटेंड करा, इस तरह की चीजें आप न्यूज़लेटर में इंक्लूड करते हैं। और अगर आप 3 महीने बाद बना रहे हैं तो आपने 3 महीने में क्या क्या काम करा, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वो डालेंगे, इन टर्म्स ऑफ फेलोशिप वो डालेंगे, आपके क्लब में कोई अचीवमेंट हुई है, आपके क्लब के बर्थडेज आप लिख सकते हैं, आपके क्लब मेंबर्स के, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, ओके और उनके कोई स्पेशल मोमेंट्स लिख सकते हैं। ओके I would request Anshu and all the senior members here कि आप एक काम करें, it would be a good idea कि आप अपने ग्रुप में अपने अपने क्लब के न्यूज़लेटर जो इस साल के हैं वो डाल दें, so that new club editors like Radhika will have an idea or can send her on personal. आप इनके पर्सनल पे अंशु कुछ न्यूज़लेटर भेज दीजिए, so that she has an idea, after seeing that she will an idea that what a newsletter is. yeah that एक्चुअली ठीक है, शी इज अ न्यू क्लब ना, एक्चुअली फरीदाबाद कार्मिक से ना राधिका। हाँ जी, हाँ yes जी, yes तभी। हाँ So, तो but I am एक्चुअली very happy, I am really very happy that you questioned. thank यस, सच में ये और सेशंस में भी कार्मिक से क्वेश्चन आया था, I am very happy with फरीदाबाद कार्मिक। you ma'am फ्रेंड सेशन में चलिए नेक्स्ट, हो गए 3 या एक लास्ट ले सकते हैं? हो गया है। ईशा को जाना है नहीं शादरा, और सेशंस अच्छा में अच्छा ऐसा करते हैं, शादरा देखते हैं की किसी का इवेंट में हैंड जाना रेज है। है या नहीं है, ये देखो बस किसी का हैंड रेज है या नहीं है, क्वेश्चन नहीं लेंगे बट है हाँ, किसी फिर एक चैट में क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर कर दूंगी एंड वी आर डन। अदर आपका ग्रुप है ना डिस्ट्रिक्ट एडिटर एंड चेयरमैन के साथ, तो वहां यू कैन आस्क, बट अभी जस्ट नाउ अभी कोई क्वेरी है किसी की? एक संगीता सिंह जी वो हाथ उठा रही हैं। हाँ संगीता जी, सिंह को, संगीता जी, संगीता सिंह को क्वेरी है, ओके। मैंने यही तो रेनू, हाँ पूछो जी पूछो। एक पूनम जी को भी है। हाँ जी, नमस्कार पूछो सभी संगीता को। जी जल्दी, हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि दीपिका जी, जब आप डिस्ट्रिक्ट एडिटर थे तो आपने एक पेज बनाया था जिसमें हम सब एडिटर्स अपने प्रोजेक्ट्स डालते थे, तो हमें अभी उसी पेज पे डालना होगा या नया बनेगा? बस नहीं इतना नहीं, मुझे पूछना था। डिस्ट्रिक्ट देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट एडिटर थी, राइट, वो पेज मेरा मेरा आइडिया था। अब जो ओके अंशु जी के आइडियाज हैं आप उसके हिसाब से काम करेंगे, ओके ओके, ठीक है ना? ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, किसी का मन नहीं हो रहा जाने का दीपिका जी? आई नो, सही कह रहे हैं हम। अच्छा हाँ, एक तो न्यूज़ लेटर हम ग्रुप में डलवा ही देंगे, आप डल जाएंगे, जिनको भी न्यूज़ लेटर देखना है वो देख लेंगे, ठीक है, ये काम तो हो जाएगा, इसकी चिंता ना करें। अच्छा शालिनी जी पूछें, आई थिंक शालिनी इज, शालिनी यानी यस पूनम यस, की। एवरीबडी विल गेट, विल पुट इन द ग्रुप। हाँ जी शालिनी जी, आस्क। Good afternoon, everyone. गुड Just would आफ्टरनून। like to know, I want to, if anyone can share this newsletter with me, so so that I can got an idea what kind of a newsletter we can, create for our club. So it श्योरली will be श्योरली, very helpful for us if someone can share the newsletter with us. कैन यू I'm टेल मी from योर Club क्लब नेम एज वेल? Swaranjali Club. गुरगांव स्वीरांजलि, हाँ, Yeah, ओके, good answer. ठीक है शालिनी, इट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, Yeah. राइट, एंड कि हम जो है न्यूज़लेटर्स डाल देंगे सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा। Thank you very जितने much. भी यहाँ पे एडिटर्स हैं जो सीनियर्स हैं वो अपने क्लब के न्यूज़लेटर्स डाल दें, Okay. ठीक है। अभी आज हम क्योंकि वी आर ऑल्सो बाउंड बाय प्रोटोकॉल, क्योंकि ईयर 1 जुलाई को शुरू होगा, सो आई वुड लव टू शेयर माय न्यूज़लेटर्स एज वेल
So after 1st July, I'll be sharing my newsletters which I made as district editor. If district editor Anshu will give her consent. दोगी ना अंशु? नहीं तो फिर मैं ऑर्डर कर दूंगी. It's my नहीं, that was a joke. So हम 1 जुलाई के बाद करेंगे अभी, लेकिन क्योंकि जिज्ञासा इतनी है तो आज हम ये डालेंगे न्यूज़लेटर्स. But we are protocol bound. Rest everything will be done after 1st July. Okay? ठीक है. बाकी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जितने भी आपके, आप मान लीजिए सेशन खत्म होने के बाद आपको याद आएगा, ओ माय गॉड वो तो मैंने पूछा नहीं, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द ग्रुप. ठीक है जी. सो आई थिंक पूनम जी हैं, वो भी पूछना चाह रही हैं. अच्छा, ये पूनम जी पूछिए जी. थैंक यू. नमस्ते. एक्चुअली मैं नमस्ते. यही पूछ रही थी, जो ग्रुप आप फॉर्म कर रहे हैं मैम, वो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इट विल बी फॉर्म विद इन डे और टू, और इट विल टेक मोर टाइम? आपका क्लब का नाम बताइए पूनम जी. दिल्ली नॉर्थ. अच्छा ठीक है पूनम जी, ऐसा था दिल्ली नॉर्थ का जो यू हैव बीन मिस्ड. ओके, सो वी आर सॉरी फॉर दैट कि आप मिस हो गई हैं. आपको अभी डिस्ट्रिक्ट एडिटर इमीडिएटली सेशन के बाद ग्रुप में ऐड कर लेंगे पूनम. या थैंक यू. क्या आज आप नए मेंबर है क्या दिल्ली नॉर्थ में? नो नो, आई एम 2.5 years old. हाँ तो वही नए हो गए ना. 2 साल में तो मैं आई भी नहीं हूँ दिल्ली नॉर्थ में, क्योंकि पहली बार देख रही हूँ आपको. इस लास्ट ईयर में बिल्कुल भी नहीं जा पाई किसी भी इवेंट पे, तभी मैं पहचान नहीं पाई. जरूर पूनम जी आपको ऐड करते हैं. ठीक है. ठीक है, बट हम मिल चुके हैं नोएडा हाट में पहले भी. अच्छा, दैट डे आई वाज बिजी सेलिंग ना. या श्योर. द साड़ीज, तो इसीलिए मुझे याद नहीं है. आई वाज वेरी बिजी, बट आई एम हैप्पी दैट वी मेट. राइट. ठीक है जी. सो ओके, थैंक यू सो मच. सी, इट शोज योर विलिंगनेस टू लर्न. जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मैंने 1-2 लोगों का और चैट में नोट कर लिया है. शेफाली जी, अभी आपको अंशु ऐड करेंगी, फरीदाबाद सेंट्रल से शेफाली गर्ग. बिल्कुल जी बिल्कुल. सो इट इज वेरी गुड टू आस्क क्वेश्चंस. कभी भी ना, आपको मेरी तरफ से एक टिप है, क्वेश्चन को कभी मत सोचिए ये छोटा है, बड़ा है, ये सिली है. आप पूछिए. अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं. क्वेश्चन पूछना ये सबसे पहले ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं. मंजू बंसल को क्वेश्चन करना है दीपिका जी. ओके, गुड़गांव सनशाइन विल ऐड यू. आप सब जो, अगर कोई ऐड नहीं है, अब अंशु जी का नंबर है सबके पास. अंशु जी अपना नंबर चैट में लिख दीजिए, नहीं तो आप अंशु जी को भी मैसेज कर सकते हैं एंड वील ऐड यू ऑल. मंजू बंसल को आपको पूछना है. मंजू बंसल, हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग शेफाली जी. मंजू जी, हाँ, अब हम मंजू जी के क्वेश्चन के बाद और कोई क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लूं, क्योंकि हमें ये इवेंट खत्म करना है, बिकॉज एवरीवन हैज टू गो एंड अटेंड द शादरा का इवेंट. हाँ जी मंजू जी, प्लीज पूछिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून जी. गुड आफ्टरनून. दीपिका जी, मैं तो एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या मैं अपना बुलेटिन हिंदी में बना सकती हूँ? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. देखिए, मैं आपको इस बात का ऐसे जवाब देती हूँ कि पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आप जरूर बना सकती हैं. ये कह, बट इसको कहने के साथ अगर आप हिंदी में बनाती हैं तो वो क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो सर्कुलेट हो गया, यहाँ पे तो हिंदी है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की इनर व्हील की, बिकॉज वी आर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बाइलिंगुअल करिए. आप थोड़ा इंग्लिश करिए, थोड़ा हिंदी करिए न्यूज़लेटर में. ठीक है, वो एक परफेक्ट मिक्स बनेगा. वो परफेक्ट मिक्स बनेगा. एक्चुअल में दीपिका जी, जब मैं प्रेसिडेंट थी,
तब मैंने अपने क्लब में, मैं सिर्फ अपने क्लब की बात कर रही हूँ, मेरे मेंबर्स सिर्फ इसी वजह से ज्यादा खुश थे, उनको हर बात समझ में आ रही थी, क्योंकि आधे मेंबर्स तो बोल ही नहीं पाते कि हमें इंग्लिश नहीं आती। आप बिल्कुल वो ठीक कह न्यूज रही हैं। तो लेटर मैंने पहले तो मेरे आप क्लब के मेंबर को समझ में आना चाहिए। तो आपको मैं क्या कह रही हूँ, आपको जो मान लीजिए मैं तो मैसेज इंग्लिश में भेजूंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्स, उसके साथ मैं हिंदी भी यूज कर लूंगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्स बनाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे कि यहाँ पे सब बैठे हैं, सितंबर में 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है। आप वो मौका उठाइए, उस महीने अगर आप न्यूज लेटर बना रहे हैं हिंदी में बनाइए और अपनी मातृभाषा को भी गौरवशाली करिए। तो एक बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। मैं आपका पॉइंट जरूर समझ रही हूँ, मैं तभी तो कह रही हूँ कि आपका न्यूज लेटर इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें उसके अंदर हो, तो आपके क्लब वाले हिंदी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, बाकी लोग जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक तो यू, आप थैंक हिंदी यू सो इंग्लिश मच, दोनों में बना सकते हैं, दोनों को उसमें ऐड कर दीजिए। थैंक एक यू किसी सो को मच क्वेश्चन, दीपिका जी। थैंक यू मंजू जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इट इज नॉट हमारे लिए इंग्लिश एक जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सबको आए, और बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो कभी भी किसी और स्टेट से हो सकते हैं, कोई गुजरात से है, कोई बिहार से है, कोई कोई बंगाल से है, सबकी मातृभाषा, ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बैठे सब मेंबर्स की मातृभाषा हिंदी हो। सो अपनी मातृभाषा का सम्मान करना परम धर्म है, मैं उस चीज को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट जब हम कोई ऑफिशियल चीज निकालते हैं तो उसका भी पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी अगर मातृभाषा इंक्लूड कर रहे हैं उसको इंग्लिश के साथ इंक्लूड करिए। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस। एक क्वेश्चन आया था कि क्या हमें बुलेटिन मंथली निकालना है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ ही न्यूज़लेटर निकालें। आइडियली सिचुएशन ये होती है, क्योंकि अब हम ई न्यूज़लेटर निकालते हैं, जैसे कि अनीता जी ने कहा था कि क्लब का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब हार्ड कॉपीज निकलती थी तो बजट के अनुसार ही हम ये काम करते थे। हालांकि ई न्यूज़लेटर निकालना में भी खर्चा होता है, क्योंकि आपको डिजाइनिंग करवानी पड़ती है बाहर से, ठीक है, तो 90% हम बाहर से ही डिजाइन कराते हैं, बिकॉज हम उस लेवल के टेक सेवी नहीं है कि हम खुद ही डिजाइन कर सके अपना न्यूज़लेटर। सो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं हर महीने ई न्यूज़लेटर निकाल रही हूँ तो उसका बजट कितना होगा, दैट यू हैव टू आस्क टू योर क्लब प्रेसिडेंट, वो क्लब में बजट है कि नहीं है। ये डिसीजन आपका और क्लब का मिलके होगा कि आपने मंथली निकालना है या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोटोकॉल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ निकालें। आइडियल सिचुएशन में हर मंथ बहुत वेलकम है, बट हैविंग सेड दैट आप 3 महीने, एक आइडिया अच्छा ये है कि 3-3 महीने बाद निकालिए, तो एक तो काम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता और आप बांध के रख पाते हैं अपने क्लब मेंबर्स को भी, उस माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट में भी एक, अगर आप मान लीजिए 6 महीने बाद या साल में एक निकालते हैं तो आप एक ही बार बता पाएंगे कि आपने क्लब का काम क्या किया। लेकिन आप उसको अगर रेगुलर इंटरवल्स में निकालते हैं, तो अगर आप 3-3 महीने में निकालते हैं तो आपके साल में सिर्फ 4 न्यूज़लेटर निकलेंगे। इन माई पर्सनल ओपिनियन इट इज एन आइडियल कॉम्बिनेशन, आइडियल फॉर्मूला, कि अगर मैं क्लब एडिटर हूं तो मैं 4 न्यूज़लेटर, क्योंकि न्यूज़लेटर में मेहनत जाती है, क्रिएटिविटी जाती है। ऐसे बहुत से क्लब्स हैं जो हर महीने भी न्यूज़लेटर निकालते हैं। सो इट इज समथिंग, अ डिसीजन टू बी टेकन विद द कंसेंट एंड डिस्कशन विद द क्लब प्रेसिडेंट एंड क्लब मेंबर्स। बट डिस्ट्रिक्ट एडिटर या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आपको नहीं कह रही हैं कि आप हर महीने न्यूज़लेटर निकालें, बट निकालें जरूर, ये हम जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी क्लब ने पूरा साल बीत गया और न्यूज़लेटर नहीं निकाला। न्यूज़लेटर निकालना भी एक एक्सपीरियंस है जो आप बहुत एंजॉय करेंगी और आपको खुद पे गर्व होगा कि मैंने इतना अच्छा काम किया। सो विद दिस आई थिंक वील कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मन तो नहीं करता है, मन तो करता है और आपसे बातें करें, लेकिन हर चीज का एक निर्धारित समय है।
ऐसे ही हमारे जूम सेशन का भी है। हाँ, हम मिलते रहेंगे साल वर्ष में, जब भी हमें जरूरत लगेगी, आपको जरूरत लगेगी, हम मिलते रहेंगे। और जब भी हमारा मन करेगा हम अनीता जी को भी तंग करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। अगर Always. हमें गाइडेंस की जरूरत होगी तो हम बुलाते रहेंगे। सो उर्मिल जी का नाउ आई जस्ट उर्मिल जी का हैंड रेज हो रहा है। नमस्कार उर्मिल जी, मैंने अभी देखा। म्यूट है उर्मिल जी। पूनम जी, आप ये ग्रुप में लिखिएगा। आई एम नॉट अंडरस्टूड फुली, बट आप ग्रुप में लिखिएगा। जी उर्मिल जी। Urmil ji, you need to unmute yourself, please. उर्मिल जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Oh, yeah. I only wish to say one thing, extend our thanks and gratitude to our district chairman elect, Deepika, our national editor, Anita, and our district editor elect, Anshu, for giving us such a precise information in a very small time, which was very interesting. And you see, I may be PAP, but I have never been a club editor. So it's a new experience for me also. It was just to say a big, big thank you to you all on behalf of all the editors. Thank you so much. That's all. थैंक यू। थैंक यू सो मच उर्मिल जी, थैंक यू। आपके वर्ड्स ने कंप्लीट कर दिया सेशन उर्मिल आई जी। नो, थैंक यू मेरा डे, सो ये मच। मेरा डे उर्मिल जी, यस। थैंक यू। So before we close today's meeting, I just want to take a moment to express our deepest gratitude and admiration for our esteemed faculty today, National Editor Anita Jain ji. यस सर। Anita ji, your expertise, your passion, your determination, your dedication, everything reflected in your PPT and your perfect explanation of roles and responsibility of club editors. I am sure the club editors have gained immensely today from your session, and they are fully geared up with full zeal to take up their roles and shine. I want to thank District Editor elect Dr. Anshu Singh for giving a precise and informative roadmap for the year 25-26. Thank you, Anshu. Well done. And I want to thank District Chairman Dr. Manisha Kaushik and the district executives who have sat patiently in every Zoom session, and they have been my partners in this journey of Adhyayan, be it physical, be it on Zoom. I am really, really grateful to each one of you for attending and sharing your expertise and roadmap in the Zoom sessions. अब बारी है धन्यवाद करने की मेरे क्लब एडिटर्स की। I am extremely happy to see all of you today, and I am very hopeful. I am very sure that all of you will not only make proud your clubs, but you will make District 301 so proud in the coming year 25-26. And teamwork is dream work. And with this teamwork, we will make a difference and will have a great 25-26 in a year. I would like to thank Dr. Urmil Bareja ji for your presence. Thank you so much and motivating us. जाते जाते आप सबके लिए 4 लाइनें। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो,
हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है क्लब एडिटर दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। So with this word, we would, on behalf of District Chairman Dr. Manisha Kaushik, I close this meeting formally. Thank you so much.